Okay, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. What we discussed in last lecture? Yesterday, I think, है ना? What we discussed? ASN limit series का something. Okay, we have started the new topic, sequence and series, and its convergence and divergence. Am I right? Okay. Yes, sir. So we continue that topic in this lecture. Okay, so I start my presentation. Okay, so we have started the taste of convergence of series and sequence. Okay, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था. Okay, not this one. This will be completed. Okay. So यहाँ पे देखो, in last lecture we have started with the concepts of sequence. Okay, so we discuss about the how you can say that that is the sequence or not. Okay, then how to identify the limit of the sequence. Then what about the convergence of the sequence and divergence of the sequence. When you can say that the increasing sequence and decreasing sequence, monotonic sequence. Okay, all these concepts we already discussed in yesterday's lecture. Okay, then we go for the series. Then in series we have discussed about the definition of the series, then convergent and divergent by using partial sum. ओके, पार्शियल सम से हम चेक करते थे कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट. तो पार्शियल सम से हमको कैसे चेक करना है? तो यू हैव टू सिंपली फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव. ओके, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट फाइंड कर रहे हो और इट इज finite number, then you can say that that series is convergent. If you have not a finite number of that limit, then you can say that it is the divergent. For example, infinity, Sn tends to infinity, as n tends to infinity, then you can say that that series is divergent. हमने example भी किए थे. Okay, then we discuss about the some important formulas for the sequence and series. Then we discuss these two examples also, and at last of yesterday's lecture we discussed the general property of infinite series. The general property of infinite series is the nature of an infinite series does not change. If you multiply any constant to that series, or if you add or subtract that series, then the nature of the convergence and divergence series will not be changed. Okay, so is there any doubt up to here, student? No, sir. No, sir. Okay, then we go for the next part of this topic. It is necessary condition for convergent. How you can say that the convergent will be that? The necessary condition. So if a series summation n equal to 1 to infinity un is convergent, then you can say that the limit n tends to infinity un is equal to 0. ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब कन्वर्जेंट आप बताएंगे, चेक करेंगे और आपको पता चला कि ये कन्वर्जेंट है, तभी ये लिमिट 0 होगा. इसका मीनिंग ऐसा होता है, इफ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट, देन द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0. मींस nth टर्म का अगर आप लिमिट निकालते हो तो वो 0 होगा. कब? जब वो कन्वर्जेंट होगा तब. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. ओके, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाए तो द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू. मींस ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 हो रहा है, देन इट इज नॉट ट्रू दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. ओके, ऐसा कभी नहीं होता है. दिस इज नॉट ट्रू. ओके, लेकिन उल्टा है कि कन्वर्जेंट है, देन यू कैन से दैट द लिमिट विल बी 0. बट अगर लिमिट 0 है, देन इट यू कैन नॉट से दैट दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट. ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है हमने. देखो 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√n अप टू 1. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है डिक्रीजिंग सीरीज है, क्योंकि 1 से ये 1/√2 छोटा है, 1/√2 से 1/√3 छोटा है. तो आई कैन राइट Sn लाइक दिस 1 + 1/√2 + 1/√3 + अप टू 1/√n. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि 1 से ये 1/√n से ये बड़ा है,
1/√n से 1/√2 बड़ा है, तो मैं n टाइम्स यही टर्म को ऐड करता हूं, तो आई कैन पुट हियर ग्रेटर देन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? रख सकते हैं कि नहीं? सर फिर से कराओ तो। ओके, यस सर, फिर से कराओ। हाँ, यहाँ पे देखो 1 + 1/√2 + 1/√3 अप टू 1/√n से, तो आप इंडिविजुअल टर्म को आप चेक करेंगे तो वो डिक्रीजिंग सीरीज है कि नहीं? यस सर। Yes, ओके, sir. अब मैं यस क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या सोचा कि 1 इज ग्रेटर देन 1/√n, 2 इज सॉरी 1/√2, 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/√n, 1/√3 इज ग्रेटर देन 1/√n। इज इट क्लियर? ये कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, क्योंकि sir. यस एंड सर। पे तो ये बहुत छोटा होगा ना, इससे तो ये बहुत बड़ा है। ओके, तो ऐसा हमने किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सभी के बीच में प्लस कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो 1/√n 1/√n प्लस अप टू 1/√n, तो ये ग्रेटर देन डाल सकते हैं कि नहीं? दिस टर्म विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू दिस टर्म। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. हाँ, अब इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे nth टर्म है तो n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। अगर 2 टर्म्स होता तो 2/√n करते हैं, 3 टर्म्स होता तो 3/√n करते हैं। यहाँ पे n टर्म्स है तो n/√n लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे दिस इज माय एग्जैक्टली √n, क्योंकि n मीन्स √n इंटू √n, और उसमें से कैंसल हो जाएगा तो √n बचेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब इसका अगर आप लिमिट निकालते हो तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n विच इज टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आया तो हम तो क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो सीरीज इज डाइवर्जेंट इवन थ्रू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 1/√n। अगर आप इसका सीधा nth टर्म देखेंगे तो वो क्या है? 1/√n है, और उसका अगर आप लिमिट फाइंड करते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, दिस इज 0, बट यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है। देखो, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सर लेकिन हम सीधा तो ये लिख सकते हैं, सॉरी, ये हम सीधा थोड़ी लिख सकते हैं √n। हाँ नहीं, हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो हमको ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये चाहिए तो पहले कन्वर्जेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, ये प्रॉपर्टी हमको ऐसा सजेस्ट कर रहा है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन को ब्रेक कर रहा है। देखो कन्वर्स वाला, इसलिए यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया है। सर तो डाइवर्जेंट ही बोला है कि ना, आंसर में तो डाइवर्जेंट ही आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो इससे नेगेशन, अगर आप इसका नेगेशन सोचेंगे तो सही हो रहा है। देखो ये एग्जांपल भी सही दे रहा है कि अगर आपके पास लिमिट 0 है देन यू कैन से दैट इट इज डाइवर्जेंट। यस और नो? यस सर। है ना? तो वो नेक्स्ट है। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट। कन्वर्जन के लिए वो सफिशिएंट नहीं है ना, नेसेसरी है, वो बात सही है कि कन्वर्जेंट होना है तो वो होना ही चाहिए, है ना, वो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सफिशिएंट भी है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखो, वी हैव सिंपल टेस्ट, और उसका नेम है जीरो टेस्ट। अगर आप इसे याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जीरो टेस्ट, जीरो टेस्ट क्या है? डाइवर्जेंस के लिए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 then the series summation n equal to 1 to infinity un does not converge. क्लियर? उसका टोटली नेगेशन हो गया। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज नोन एज द जीरो टेस्ट। मीन्स डाइवर्जेंस आपको चेक करना है तो यू कैन यूज जीरो टेस्ट डायरेक्टली, बट कन्वर्जन चेक करना है तो आप उस तरीके से नहीं जा सकते। एवरीबडी क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस अब इसके बारे में तो आप पढ़ के आए हो, ज्योमेट्रिक सीरीज। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज? a plus ar square up to ar raised to n minus 1 and so on. तो दिस इज अवर ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर मैं उसके nth टर्म का, दैट मीन्स इफ आई फाइंड पार्शियल सम, देन व्हाट इज माय पार्शियल सम? a plus ar square up to ar raised to n minus 1।
तो अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो उसके लिए मॉड्यूलस आर लेस देन 1, व्हाट इज माय आर? आर इज द रेशियो ऑफ द टू टर्म्स, मींस a प्लस ए आर है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस जा रहा है यहाँ पे देखो आर 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 से बढ़ता जा रहा है, तो सभी टर्म का जो रेशियो है मींस जो भी हमारा इंक्रीमेंट है वो आर से हो रहा है, इसलिए आर के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1 होगा तब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इज टू n इज इक्वल टू 0 होता है, वो हमने लिमिट में डिस्कस किया था। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir, yes. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसेंड करेंगे आप, तो यहाँ पे देखो इसका सम भी आप पढ़ के आए हो। इसका सम क्या होता है? a 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, आता था ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, 1 sir. माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर करेंगे और इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो इट इज फाइनाइट। ओके, तो फाइनाइट होता है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? Convergent. Convergent. So when modulus are less than 1 then you can say that the series is convergent, and when r greater than 1 तो उसके लिए सोचते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r रेज टू n अगर आप फाइंड करेंगे तो वो भी टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा, उसका पार्शियल सम करेंगे वो भी टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंस फॉर r ग्रेटर देन 1, मींस r अगर 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट देगा। एंड थर्ड वन r इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो दोनों 1 से ही ब्रेक हो रहा था। इफ r इज इक्वल टू 1 देन वी हैव Sn इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस a, कितने टाइम्स? n टाइम्स, क्योंकि हम पार्शियल सम फाइंड कर रहे हैं तो n इंटू a होगा, और उसका लिमिट अगर आप फाइंड करते हो तो इन्फिनिटी होगा, तो डाइवर्जेंट। दैट मीन्स यू कैन से दैट द ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन r मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1, and when r greater or equal to 1 then it is divergent. Is it clear everybody? Yes, sir. Sir. यस सर। हाँ बोलो बोलो। एसन का इक्वेशन a अपन 1 अपन r आएगा ना, वो इन्फिनिटी होगी तो क्या ग्रेटर देन 1 के लिए। क्या हुआ फिर से रिपीट करो तो। सर एसन का इक्वेशन है ये, हमने तो कहा कि इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हाँ हमें कोई कीमत निकालनी हो एसन की, तो सर हाँ। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस r आएगा ना? नहीं, ये यही फॉर्मूला तो यही रहेगा, उसका nth जो आप पार्शियल सम फाइंड कर रहे हो तो यही रहेगा, लेकिन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तब हमने एक देखा था, आपको याद है तो r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 x रेज टू n माला है। तो अगर मैं दिखा पाता हूँ तो दिखा देता हूँ, एक 1 मिनट पहले देख लेता हूँ कि उसमें ये है कि नहीं। तो जब भी ये होगा तब इन्फिनिटी जाएगा, है ना, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जो r जब ग्रेटर देन 1 होगा तब मीन्स वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है क्या कर रहे हो? वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब ग्रेटर देन 1 है तब। देखो मैं एक दिखाता हूँ, हमारी जो लिमिट की प्रॉपर्टी थी उसमें ही था हमारा। वन मिनट, सीधा ही चले जाते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, ये रहा ना आपका r ग्रेटर देन 1 वाला, देखो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 के साथ वो रिलेट करेगा। तो r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करेंगे, उसमें से n माइनस 1 अगर आप करते हो तो एक फैक्टर बाकी बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा ही फॉर्म मिलेगा। तो जब भी ऐसा फॉर्म है तब उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ओके, तो इसीलिए वहां पे वो इन्फिनिटी बन रहा है। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया और ऐसा इन्फिनिटी हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज डाइवर्जेंट। डन एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो द कंक्लूडिंग पार्ट इज हियर। ज्योमेट्रिक सीरीज a plus ar plus ar square up to ar raised to n minus 1 is convergent if modulus are less than 1
डाइवर्जेंट इफ आर ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मींस ये अगर तीनों में से कोई नहीं है तो क्या हो जाता है, ऑसिलेटरी। तो कब होगा, जब r लेस और इक्वल टू -1 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉड्यूलस r लेस देन 1 मींस कौन सी रेंज हुआ, एनीबॉडी? देखो यही पे -1 to 1. -1 to -1 लेस देन r लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट देगा, यहीं पे लिख देते हैं। चल -1 लेस देन r लेस देन 1। अब r ग्रेटर इक्वल टू 1 मींस 1 लेस और इक्वल टू r, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है, तो इट इज टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा सकता है। ओके, तब वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन जब r लेस और इक्वल टू -1 मींस ये छोटा होगा, -1 से छोटा, लेकिन कितना छोटा, -इंफिनिटी। तो जब ये सिचुएशन होगा देन इट इज ऑसिलेटरी, ये इंटरवल होगा देन इट इज डाइवर्जेंट, एंड इन दिस रेंज यू कैन से दैट इट इज कन्वर्जेंट। ओके, एंड ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है, टोटल सम, एस पार्शियल नहीं बोला हूं, टोटल सम क्या होगा, a/1 - r। इज इट क्लियर? ये भी आप पढ़ के ही आए हो और इसके ऊपर आपने एमसीक्यू भी दिए बहुत सारे, है ना? Yes, सर sir. ये कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं ना? सॉरी, ये जियोमेट्रिक सीरीज का सम है, वो आपने इक्वेशन बताया अभी लास्ट, हाँ वो कन्वर्जन सीरीज के लिए यूज कर सकते हैं ना? कन्वर्जेंट, अगर ये r सिर्फ आपको फाइंड करना है, अगर आपके पास r आ गया देन यू कैन से डायरेक्टली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज। वैल्यू फाइंड करनी है तो हाँ, r की सिर्फ वैल्यू निकालना है। ओके। ओके, तो नेक्स्ट ये रहा, देखो 1 + 3/4 + 9/16 + 27/64 एंड सो ऑन। तो इसमें से सिर्फ r निकाल दो, r कौन सा हो रहा है, 3/4. 3/4 तो यहाँ पे 3/4. 3/4 होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3/4 क्यूब है, तो ये से ही चलता जाएगा। तो मेरा a = 1 है ना, एंड r = 3/4 है। तो 3/4 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? Less than 1. लेस देन 1, तो कौन से क्राइटेरिया के साथ फिट हो रहा है, फर्स्ट केस कन्वर्जन। कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे उसको Convergent. सिस्टमेटिक लिखोगे। देखो वी आर गिवन दैट दिस वन, ओके, एस एन उसका पार्शियल सम देंगे तो क्या होगा, 1 + 3/4 + 3/4 क्यूब + 3/4 up to 3/4 n - 1, which is geometric series having common ratio r = 3/4 लेस देन 1 एंड a = 1, जो हमने बोला वही का वही है। दैट मीन्स एस एन = ये हुआ 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r। तो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 है ना, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लिया है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 यहाँ पे बचेगा 1 - 3/4 n। इज इट क्लियर एवरीबॉडी अप टू हियर? Yes Sir. sir. हाँ बोलो बोलो। सर कुछ ना बोला क्वेश्चन में तो पार्शियल सम निकालने का, तो डॉट 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 किया तो इनफाइनाइट तक नहीं समझेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे डॉट आपको स्टेटमेंट तो इनफाइनाइट तक ही दिया होगा, लेकिन जब भी आपको जो भी टेस्ट पीछे वाले जो आएंगे वो जब तक हम नहीं स्टडी करेंगे तब सीधा आपको एसएन ही फाइंड करना है, क्योंकि एसएन से हम सीधा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मैंने बोला था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही था। उसके बाद उसको एक्सटेंड करके बाकी के सारे जो रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, वो सारे टेस्ट बाद में डेवलप किए गए, लेकिन पहले जब मैथमेटिशियन करते थे तो यही सिंपल तरीके से करते थे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मेरा एसएन हो गया, ये 4 × 1 माइनस। अब हमको पता है एसएन की लिमिट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 है ना, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, x⁻n आया ना ये। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे 4 × 1, इसका 1 होगा, 4 तो आउटसाइड चला जाएगा तो 4 आएगा, तो ये फाइनाइट हुआ, दैट मीन्स हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? डन? यस सर। सर हम वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना इसका? हाँ, अगर आपको एमसीक्यू में अगर यही एग्जाम्पल पूछा है तो सीधा आप इस तरीके से सोच सकते हो कि r इज लेस देन 1 देन दिस इज द कन्वर्जेंट। ओके, लेकिन जब आपको 2 मार्क्स में पूछा है तो यू कैन नॉट गो थ्रू द r। क्लियर? ओके, डन एवरीबॉडी? ओके, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, समेशन n = 1 to infinity 1/2 n - 1। ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, पता चली गया आपको, क्योंकि आप जैसे ही n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा होगा 1
अपॉन 2⁻²0, सेकंड करेंगे तो 1/2⁻1, थर्ड n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो अगेन यहाँ पे गिवन सीरीज ज्योमेट्रिक देखो, यहाँ पे आपको दूसरी मेथड से सीधा करके दिखाया है r इज इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, तो Sn इज इक्वल टू 1 - 1/2 अपॉन 1 - 1/2 टू 1 - 1/2 तो r जैसे ही लेस देन 1 हुआ तो हम सीधा, हमको पता है लेकिन सिर्फ मार्क्स के हिसाब से आपको जाना है, तो इसका आप लिमिट फाइंड करेंगे तो 2 ही रहेगा, दैट मीन्स इट इज कन्वर्जन। इज इट सर इसमें क्लियर? वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते a/1 - r वाला? ए बाय वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी है। देखो नहीं मैं सर, वो आंसर तो सेम ही आता है ना। सम यस की बात सर, कर रहे हैं ना यस आप, ए अपॉन 1 - r है ना, हाँ वो तो सम फाइंड करना है तब आप रख सकते हो। यहाँ पे हम सम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और लिमिट से हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक करते हैं। आपको अगर यहाँ पे बोला है एक्स्ट्रा में ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द सीरीज, ओके, तब जाके आपको यहाँ पे ये करना है कि s इज इक्वल टू a/1 - r, सो a इज इक्वल टू 1, सो 1/1 - 1/2, सो इट गिव्स मी 2/1, सो 2। क्लियर? सर, पर वो लिमिट और सम तो सेम ही आएगा ना? नहीं, ऐसा थोड़ा जरूरी है हर सेम टाइम आएगा ना, वरना तो ऑसिलेशन बोल देंगे ना, तो सेम नहीं आता तो। सेम नहीं r आएगी -1 से बड़ा हो तो नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑसिलेटरी कब होगा? जब आपको एक लिमिट नहीं मिलता है, यूनिक लिमिट नहीं मिलता है, तब ऑसिलेटरी होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? yes। अगर यहाँ पे लिमिट एक ही मिल रहा है एंड फाइनाइट है तो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? और सर रेशियो भी -1 से छोटा होना चाहिए। यस सर, यस। अगर लिमिट इंफिनिटी हुआ तो उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। आप डोंट बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूजन मत डेवलप करो। जब मैंने बोला कि ये सम के लिए है तो सम जब पूछा जाए तभी ये हरकत करना है। डन? ओके सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिमूव्स 1 m of the impurity in the first stage, मीन्स वो क्या कर रहा है 1/m से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो उसको ट्रीटमेंट कर रहा है इम्प्यूरिटी करने के लिए। ओके, तो इन ईच सक्सेसिंग स्टेज द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी रिमूव्ड इज 1/m ऑफ द रिमूव्ड इन द प्रीसीडिंग स्टेज, मीन्स वो जो उसका जो प्रोसीजर है उसमें वो 1/m से वो चलता जा रहा है कि आप रिमूव करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में 1/m होगा, ओके, 1/m⁻²0, सेकंड स्टेज में 1/m⁻1, थर्ड स्टेज में 1/m⁻2, ऐसे करके वो उसको इम्प्यूरिटी से क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, सो दैट इफ m इज इक्वल टू 1, मीन्स आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि जब m इज इक्वल टू 2 होगा तब वाटर कैन बी मेड एज प्योर एज यू लाइक। ओके, मीन्स जब m इज इक्वल टू 2 होगा तब कितना वो प्योरिटी देगा, बट इफ m इज इक्वल टू 3 at least 1/2 of the impurity will remain no matter how many stages are used। तो यहाँ पे देखो थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहले तो क्या कर रहे हैं हम कि इम्प्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो पहले 1/m हुआ ⁻0, सेकंड स्टेज में 1/m⁻1, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 1/m, ओके 1/m, उसके बाद 1/m², 1/m³, ऐसे चलता जाएगा। यस और नो? पहली बात ये पता चला। यस सर। अब Yes, sir. उन्होंने ऐसा बोला है कि जब m इज इक्वल टू 2 लेंगे तब वो प्योर हो जाएगा। लिखा है ना, वाटर कैन बी मेड एज प्योर, वो हमको प्रूव करना है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, कैसे करेंगे हम एग्जांपल में देखते हैं। बट जब m इज इक्वल टू 3 होगा तब वो कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है, दैट मीन्स एटलीस्ट 1/2, है ना,
1/2 of the impurity will remain. It means इतना impurity वहां पे होगा, means total clean नहीं होगा. m is equal to 2 पे total clean हो जाएगा and m is equal to 3 पे वो आधा ही प्योर हुआ होगा. और उसमें हमको ये काउंट नहीं करना है हाउ मेनी स्टेजेस आर यूज्ड. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके. Yes. तो यहाँ पे देखो, तो देखो द टोटल ऑफ इम्प्योरिटी P, मैंने उसको P बोला है, रिमूव आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेज. मीन्स मैंने कंसिडर किया कि आई एम कंसिडरिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस बट माय इम्प्योरिटी विल बी P. ओके. रियली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के बाद होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी नंबर तक हम जाएंगे और उसमें P चेक करते जाएंगे एंड P विल बी माय इम्प्योरिटी. ओके. इज गिवन बाय द सीरीज. अब कौन सी सीरीज हमको इम्प्योरिटी देगा? तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल, जैसे मैंने बोला ऐसे ही, और हमको जो गिवन डेटा है उसी हिसाब से हम गए. तो P इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon m raised to n. मीन्स फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो m raised to 1. ओके. मैंने पहला जो नहीं करना था वो भी स्टेप ले लिया. ओके. सो 1 upon m raised to 1 मीन्स ये 1 upon m raised to 0 मीन्स टोटल प्योर हो जाएगा, है ना, वो नहीं करना था, सॉरी फॉर दैट. ओके. ये 1 upon 1 हो जाएगा ना तो टोटल प्योर हो जाएगा, वो नहीं लेना है. तो 1 upon m मीन्स फर्स्ट स्टेप, सेकंड 1 upon m स्क्वायर, देन 1 upon m क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल सीरीज. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर. Yes. यू आर राइट. अब इसमें हमको जो दिया है वो हम चेक करते हैं कि जब m इज इक्वल टू 2 होगा तब क्या हरकत हो रहा है. तो P इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon 2 raised to n हुआ, विच इज ज्योमेट्रिकल सीरीज विथ r इज इक्वल टू 1/2. रेशियो इज माय 1/2. तो 1/2 के लिए द सीरीज इज कन्वर्जेंट. हमको पता है 1/2 लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया ना. यस सर. हाँ, तो लेस देन 1 हुआ तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू. अब ये सम की बात हो रहा है. P मीन सम हुआ ना, टोटल दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, P इज इक्वल टू टोटल सम हुआ है. तो टोटल सम ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि वी आर यूजिंग द फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस R. यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे सर. n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप चेक करेंगे तो 1/2 1 2 स्क्वायर 1 upon 2 क्यूब 1 upon 2 raised to 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा. लेकिन 1/2 एवरी टर्म में, ईच टर्म में कॉमन है, तो मैं अगर 1/2 को कॉमन ले लूंगा तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2 स्क्वायर 1 upon 2 क्यूब, देन इट्स ओके. Then we can say that this is our A and this is our R. Am I right or wrong? यस Yes, सर. sir. Yes, Okay. sir. Yes. यहाँ A upon 1 minus R हुआ तो A is my 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 बचेगा, 1/2 करके 1. अब जैसे ही 1 मिला that means my water is pure, है ना, Yes, sir. Yes. Yes, विदाउट sir. एनी मिक्सिंग. तो ये हमारा प्योर हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा था ना, वाटर कैन बी मेड एज प्योर एज यू लाइक व्हेन m इज इक्वल टू 2. हमने ये प्रूव कर दिया. ओके. अब सेकंड हमको चेक करना है m इज इक्वल टू 3 के लिए. तो m इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे देखो, इफ we take m is equal to 3 then our P is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon 3 raised to n, which is again geometrical series with r is equal to 1/3 which is less than 1. okay, अगर ये less than 1 की जगह पे दूसरा होता, डाइवर्जेंट होता, तो डाइवर्जेंट होता तो हम क्या बोलते हैं, ये कभी प्योर नहीं हो सकता. am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेकिन Yes, यहाँ sir. हमको बोला है कि आफ्टर सम स्टेज इट विल बी 1/2, है ना, 1/2. तो वो हमको दिखाना है. द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज P इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3. जैसे आगे हमने चेक किया ऐसे ही आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे देन आवर आंसर इज 1/2 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. 1/2 बोला था ना हमको. Yes, sir. कितना प्योर होगा, तो आधा प्योर होगा, that means 1/2. so this is the real life application. okay, then it will be remain at least 1/2 of the impurity. is there any doubt in this example? Anybody, any question? नो सर.
नो सर। सर एक बार आगे की स्लाइड दिखा दीजिए। Yes, yes, yes. Why not? Yes. Done? ओके सर। नेक्स्ट। यस। ओके, अब देखो नेक्स्ट इन्वेंशन क्यों हुआ, जो आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे उसका रीजन लिखा हुआ है। देखो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड द पार्शियल सम, मीन्स कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होता है तो उसका अगर आप nth सम जो फाइंड करना चाहते हो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते समटाइम्स। ओके, तो फॉर एवरी सीरीज इजीली, thus it becomes necessary to use other test for series with all terms positive। मीन्स हमारे पास दो टाइप क्या होगा कि एक ऑलवेज प्लस 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 रहेगा, या फिर प्लस माइनस ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर सारे माइनस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे पॉजिटिव टर्म है देन यू कैन अप्लाई मोस्ट ऑफ द टेस्ट, एंड जब प्लस माइनस होगा तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सीरीज, उसके लिए भी अलग से टेस्ट होता है, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो लेकिन उसकी जरूरत व्हाई दे रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे उसका रीजन है कि ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पार्शियल सम, सो वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Okay? Yes, So sir. first and most IMP टेस्ट, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे, अगर उसमें सीरीज का एग्जाम्पल पूछा है तो ये आपको 100% कहीं ना कहीं यूज होता ही होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कीप इन योर माइंड पी सीरीज टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं तो इसी से याद रखता हूँ पी सीरीज टेस्ट से, क्योंकि उसमें पी इन्वॉल्व है, इसलिए द पी सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n raised to p इज इक्वल टू 1 upon 1 raised to p, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 1 upon 2 raised to p प्लस 1 upon 3 raised to p एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा? जब p ग्रेटर देन 1 होगा तब, एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस और इक्वल टू 1 होगा तब। तो आपको एमसीक्यू में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा दे दिया है कि समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n square, व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। Because p is equal to 2 and which it is greater than 1, then you can say that it is convergent. Easily clear? n equal to 1 to infinity दिया है और यहाँ पे आपको बोला गया है कि n raised to -1, then डाइवर्जेंट। ले सकते हैं यहाँ पे -1, है ना? तो p is equal to -1 which is less or equal to 1, है ना? That's why it is divergent. Is it clear everybody? Yes, sir. यस सर। यस ओके, चलो उसके अलावा भी एक सिंपल एग्जांपल ले ले। समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon n raised to 3/4। चलो 3/4 में क्या होगा? p हमारा 3/4 डाइवर्जेंट। एंड अगर 3/2 दूं तो Convergent. ओके, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 1 सो इट इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में फीड करना है, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन भी नेक्स्ट में है। ओके, यहाँ ये जो पी सीरीज टेस्ट है ना, उससे आपके 40 to 50 एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर आपको नेक्स्ट केसेस के बारे में सोचना है। डन। फर्स्ट केस है, फर्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट मीन्स कुछ नहीं है, उसकी एक कंडीशन है और उसके बाद आपको जो आपके पास वेल नोन मीन जिसका आप कन्वर्जन डाइवर्जन जानते हो उसके साथ गिवन डेटा को आपको कंपेयर करना है, और उसके बाद उसका जो भी आएगा, अगर आपने जो भी जिसके साथ कंपैरिजन लिया है वो कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। अगर वो डाइवर्जेंट लिया है आपने तो ऑटोमेटिकली दूसरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। That's why this is known as the comparison test. We are using comparison between two series.
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, ओके यहाँ पे देखो, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज मीन्स ईच टर्म विल बी पॉजिटिव। डन? ओके, तो यहाँ पे सारी टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un एंड समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn, un greater than 0, vn greater than 0 for all n are such that, okay, such that समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn कन्वर्जेस एंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाँ, माइनस un, नहीं ये पॉइंट है, बुलेट है ये, आप ऐसा मत समझना कि माइनस है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ओके, un लेस और इक्वल टू vn फॉर ऑल एंड देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un आल्सो कन्वर्जेस। ओके, आपको सीधा नहीं पता चला, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आपके पास दो सीरीज है, मेरी गिवन सीरीज है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un, दिस इज द गिवन सीरीज, आपको जिसका फाइंड करना है वो। क्लियर फर्स्ट स्टेप? यस सर। ओके, अब Yes, मुझे ऐसी सीरीज सिलेक्ट करना है कि जिसका मैं कन्वर्जेंस जानता हूं, दैट इज माय vn, नोन सीरीज। ओके, कि जिसका कन्वर्जन मुझे पता है। क्लियर? सेकंड स्टेप। यस सर। दूसरी कंडीशन मुझे ऐसा दिखाना है कि un इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू vn। कर सकते हैं? सर मतलब कुछ रिलेशन बनना चाहिए दोनों सीरीज में। हाँ, और रिलेशन ऐसे ही बनना चाहिए, un लेस और इक्वल टू vn, क्योंकि ये छोटा होगा तभी तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे ना। यस सर, पार्शियल की तरह। ओके, सो सर? यू, यस यस, वो फर्स्ट वाला सर नॉन है ना सर? नहीं देखो, मैं फिर ये से रिपीट क्वेश्चन करता है, हूँ, वो दिस इज द क्वेश्चन है। गिवन स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट में दिया होगा, ये स्टेप पता चल गया सबको? यस सर। अब फर्स्ट आपको क्या सोचना है कि मुझे ऐसी सीरीज डिफाइन करना है जिसका मैं कन्वर्जन डाइवर्जन जानता हूं, दैट मीन्स नोन सीरीज। ओके, यस सर। दूसरा मुझे ये दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन डेवलप करके दिखाना है कि un लेस और इक्वल टू vn। डन? यस ओके सर। ओके, अब यहाँ इसके बाद, हाँ इसके बाद यहाँ पे दो डिफरेंट क्राइटेरियास आएंगे कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। डन? अगर समेशन जो आपने नोन सीरीज लिया है vn डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. Okay, so this is the comparison test. Second, if two positive term series summation n equal to 1 to infinity un and summation n equal to 1 to infinity vn are such that, अब ये किसके लिए आया? डाइवर्जेंट के लिए। देखो मैंने बोला कि यहाँ से आपके दो पार्टीशन हो रहा है कि vn डाइवर्जेंट होगा तो un गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन डाइवर्जेंट के लिए सिर्फ कंडीशन उल्टा हो जाएगा। डन एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कंपैरिजन टेस्ट। सो इज देयर एनी डाउट इन कंपैरिजन टेस्ट? सर। नो सर। हाँ बोलो। सर ऐसा एक एग्जांपल ले example सकते हैं ना, vn को हाँ हाँ 1/2 एग्जाम्पल स्क्वायर करेंगे, और एग्जाम्पल करने वाले, डोंट वरी, है ना? सर? ओके, हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो ना। हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट जो है वो उसके नेम के हिसाब से ही आपको सोचना है कि आई एम यूजिंग कंपैरिजन बिटवीन टू सीरीज। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको आपको कंपेयर दूसरी के साथ करके उसका कन्वर्जन डाइवर्जन डिफाइन करना है। तो आई हैव समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un विच इज माय गिवन स्टेटमेंट। अब मुझे समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn जिसका मैं डाइवर्जन कन्वर्जन जानता हूँ ऐसी सीरीज मुझे निकालना है। अब डाइवर्जन कन्वर्जन किससे हम डिफाइन कर पाएंगे इजीली? एनी गेस वर्क? कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो वाले पी टेस्ट है। पी टेस्ट है ना, उसके अलावा तो कोई हमारे पास अभी है ही नहीं ना।
अगर हमको फाइंड करना होता तो फिर से लिमिट में जाना पड़ता और फिर से डिफाइन करना पड़ता, लेकिन वी हैव ऑलरेडी वन टेस्ट विच इज पी टेस्ट, तो उससे ही मैं डिफाइन करके इसका बोल पाऊंगा ना वीएन का। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। उसके बाद Yes, आपको sir. इस तरीके से उसको चेक करना है कि इट इज यूएन लेस और इक्वल टू वीएन और यूएन ग्रेटर इक्वल टू वीएन। ओके, अगर ये हुआ यूएन लेस और इक्वल टू वीएन हुआ, देन यू कैन डिफाइन डायरेक्टली कन्वर्जन बाय यूजिंग समेशन n इक्वल टू 1 to infinity vn is convergent, so summation un is convergent. And if you have the relation like this un greater equal to vn, then you can define directly divergent by using summation n equal to 1 to infinity vn divergent, then summation un divergent. Is it clear everybody now? Yes, sir. ओके, अगर आपको ये दोनों से नहीं जाना है तो दूसरा एक लिमिट फॉर्म है। तो लिमिट फॉर्म में सिंपल है, देखो, इफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un एंड समेशन n इक्वल टू 1 to infinity vn आर सच दैट, अब इसके लिए थोड़ा लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn कर दो, और un अपॉन vn का अगर आपका नंबर फाइनाइट आता है ना, फाइनाइट एंड नॉन जीरो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, देन आप कंपैरिजन से उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा जूम करना पड़ेगा फिर से, क्या आप देखो नॉन जीरो, देन समेशन n इक्वल टू 1 to infinity and summation n equal to 1 to infinity vn converge or diverge together, means you can define, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद vn के अकॉर्डिंग आप उसका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोल दो। इज इट क्लियर? लिमिट फॉर्म सर ये नॉन सीरीज है वीएन वाली। देखो, अब मैं सिंपल एक आपको अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट से ही समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपके पास 1 मिनट, इसके बाद अगर आपका कंफ्यूजन रहता है तो आप फिर से मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई विल हैप्पी टू डिस्कस विथ यू। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा मुझे पता है। यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट होगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un। ओके, तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन है, मीन्स आप फर्स्ट एंड सेकंड से जाओ या फिर थर्ड से जाओ। तो यहाँ पे लिमिट फॉर्म होगा, ओके, और ये विदाउट लिमिट फॉर्म होगा। तो विदाउट लिमिट फॉर्म में आपको क्या चेक करना है? तो नंबर 1 क्राइटेरिया है कि समेशन n इक्वल टू 1 to infinity vn आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि un इज लेस और इक्वल टू vn होना चाहिए। ओके, तब समेशन un जो हमको दिया है वो कन्वर्जेंट होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नंबर 1 में सर वो ये लिया आपने, सॉरी ये नॉन सीरीज है वीएन वाली। vn वाली, हाँ नॉन नॉन, हाँ वो तो यूएन की सिमिलर होनी चाहिए या कोई भी चल सकती है? नहीं, vn नॉन हम जानते हैं, उसका कन्वर्जन जानते हैं वो, और कैसे जानते हैं? पी टेस्ट से जानते हैं। मतलब वो कोई भी सीरीज हो सकती है ना? कोई भी सीरीज, हाँ कोई भी सीरीज ले सकते हो, सही बात है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड में समेशन n इक्वल टू 1 to infinity vn आपको पता है कि डाइवर्जेंट है, ओके, या फिर कन्वर्जेंट है, जो भी है, लेकिन कंडीशन ये है कि un ग्रेटर इक्वल टू vn हो रहा है, देन स्ट्रिक्टली समेशन un विल बी डाइवर्जेंट। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। अब लिमिट फॉर्म में यही सब कुछ करना है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो लिमिट में चली जाती है, क्योंकि आप देखेंगे तो un अपॉन vn लेस और इक्वल टू 1 हुआ, दैट मीन्स इट्स लाइक टू बाउंडेड। ओके, तो यहाँ पे आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फाइंड करो एंड un अपॉन vn निकालो इफ इट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ओके, देन यू कैन डिफाइन and you can say about the convergent and divergent of the summation of un. Done? Clear everybody? यस सर। यस सर। हाँ, और उसके बाद आप जो जानते हो vn के बारे में वो कन्वर्जेंट है, तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा, एंड अगर आप जानते हो कि vn डाइवर्जेंट है तो समेशन ऑफ vn भी un डाइवर्जेंट हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट कंपैरिजन टेस्ट में?
सर वो लिमिट फॉर्म है, Yes, वो sir. इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट आया तो Infinite है, then the test is failed. ओके Okay, you cannot talk about the comparison test. ओके Okay, तो सर सर अगर हमने ऑसिलेटरी हाँ सॉरी वीएन हमने तो सॉरी स्पीक लाउडली. सर वीएन हाँ ऑसिलेटरी लिया तो वीएन ऑसिलेटरी आप क्यों लेंगे? जानबूझ के खतरा थोड़ी मोड़ना है हमको. पता है वही सर लेना। मतलब आ गया हमको तो चेक करना है कन्वर्जन डाइवर्जन. हमारा जो एम है वो कन्वर्जन डाइवर्जन के लिए, तो जानबूझ के क्यों हम ऑसिलेटरी लेंगे? अगर ये सर दोनों में मतलब से कोई नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑसिलेटरी, है ना. डन. सर Yes, लिमिट sir. इनफाइनाइट है तो उसका मतलब क्या? लिमिट टू इनफाइनाइट है, दैट मीन्स वो दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है. यू कैन नॉट डिफाइन एनी रिलेशन बिटवीन देम. सर तो वो हम बोल सकते हैं ना ऑसिलेटरी है ये ऐसा गिवन सीरीज ऐसा है। ऐसा कोई थियरम नहीं है, सॉरी फॉर दैट. ओके ओके, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में बिलीव करना पड़ता है ना, उसको प्रूव भी करना पड़ता है ना. यस सर यस ओके, तो ऐसा कोई हमको कोई ऐसा कंक्लूजन मिला नहीं है, लेकिन गुड पॉइंट ऑफ व्यू सही है आपका कि उसके लिए क्या हो सकता है. ओके, इट इज गुड क्वेश्चनेबल, है ना. डन. यस सो यहाँ पे देखो नोट द कंपैरिजन टेस्ट रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अनदर सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी vn विच इज नोन एज ऑक्सिलरी सीरीज. उसको एक नेम दिया गया है vn को, उसका नेम है ऑक्सिलरी सीरीज. ओके, टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज जनरली वी यूज द ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट. मैंने बोला था ना कि पी सीरीज आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना. तो यहाँ पे देखो पी सीरीज टेस्ट या ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट से आप समेशन ऑफ वी एन को डिफाइन कर लो, देन गो फॉर द समेशन ऑफ यू एन. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर ओके, अब देखो आपको शॉर्टकट दिया है नंबर 3 में. तो जब भी आपको सर कंपैरिजन टेस्ट, यस बेटा. सर पर ऐसा फॉर्म बन ही ना रहा हो तो 1/n⁻p मतलब अंडर रूट में 1 - n² ऐसा कुछ हो तो सर. यही तो है ना, यही तो आपको सोचना है कि मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं. दैट इज द बिग क्वेश्चन, है ना. आपके पास 4-5 टेस्ट होंगे, लेकिन उसमें से कौन सा एप्लीकेबल है वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज द एरर. एंड कौन सी मेथड होगा? ट्राई एंड एरर मेथड होगा. ओके, तो उससे यस आप मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सी आप ज्यादातर यूज कर सकते हैं. दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन हम जब भी करेंगे तब पहले सोचेंगे कि विच टेस्ट विल बी एप्लीकेबल. ओके, देन यू कैन अटैक डायरेक्टली. अगर वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. अंडरस्टैंड? यस सर. तो यहाँ पे तो फर्स्ट टेस्ट है. तो देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया कि इन जनरल कंसीडर वीएन को आप इसी फॉर्म में अगर आप ले सकते हो देन यू कैन इजीली अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट. अंडरस्टैंड? यस सर ये तो पी सीरीज ही है ना। हाँ यस. तो यहाँ पे और इजीली यू कैन डिफाइन दी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ un. ओके, अब ये तो पता ही है कि p द हाईएस्ट पावर n इन डिनोमिनेटर ऑफ un एंड द हाईएस्ट पावर n इन न्यूमरेटर ऑफ un. ये अभी आप फोकस मत करो, मैं एग्जांपल के थ्रू में आपको दिखाऊंगा. ओके, तो बाद में करेंगे. ओके, एग्जांपल आया, लेकिन we have only 1 minute, so we stop here. So is there any doubt in this session? नो सर नो सर. नो क्वेश्चन में सर एक डाउट सर Yes, सर बोलो. सर आगे एक लिमिट के क्वेश्चन में सर एक डाउट है. कराया ना